ہی کے تم سے یہ روشنی کشفت دجا بجمالہی نانا نبی بابا علی حسنت جمیع خصالہی ہے جن کے در پہ گدا ولی صلو علیہ وآلہ اقبدا صلی علی حسنین کاندھوں پر سوار مرحبا دوش نبی پر ہے دشالہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا یا رسول اللہ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور حضرات محترم سننے اور سنانے سے قبل بہتر اور مناسب ہے کہ ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے اس نبی کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک پڑھیں گے کہ جس نبی کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات جس نبی کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بنایا جس نبی کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو بنایا جس نبی کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر میں تنفس کا مادہ پیدا کیا جس نبی کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو بھیجا جس نبی کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو نبی بنایا جس نبی کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح کو نبی بنایا جس نبی کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد کو نبی بنایا جس نبی کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم و اسماعیل کو نبی بنایا جس نبی کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ و عیسیٰ کو نبی بنایا اب ہم اور آپ مل کر اس نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں گے کہ جس نبی کی شان کو اعلیٰ حضرت نے دیکھا ہے تو قلم چلاتے ہیں اور لکھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بدر ہدایت پہ لاکھوں سلام شجر یار رب تاج دار حرم بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام اس نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں گے کہ جس نبی کی شفاعت کو جس نبی کی کمر کو اعلیٰ حضرت نے دیکھا ہے اور کون سی کمر آج ہم لوگ یہاں معاشرے میں دیکھتے ہیں کوئی کسی امتحان کی تیاری کر رہا ہے کوئی کسی امتحان میں لگا ہے کوئی آئی ایس کے امتحان کی تیاری کر رہا ہے کوئی آئی پی ایس کے امتحان کی تیاری کے لیے اپنی کمر کو کس رہا ہے لیکن ایک دور ایسا ہوگا ایک وقت ایسا آئے گا جسے حشر کا ہنگامہ کہا جاتا ہے اس وقت میں نفسا نفسی کا عالم ہوگا نہ بیٹا باپ کا ہوگا نہ بیٹی ماں کی ہوگی اس وقت میں اگر ہم گنہگار امت کی شفاعت کے لیے کوئی کمر کو کسے گا تو وہ مصطفیٰ کی ذات ہوگی تو ہم گنہگاروں کی شفاعت کے لیے کمر بستہ ہوگے مصطفیٰ اور وہ شفاعت جس کے بارے میں کسی نے کہا تھا وہ شفاعت جب مصطفیٰ کی جب میدان محشر کا معاملہ ہوگا جب میدان محشر ہوگا ہم گنہگار ہوں گے مصطفیٰ کی شفاعت ہو رہی ہوگی وہاں نیکوکار بھی ہوں گے وہاں گنہگار بھی ہوں گے گناہوں میں ڈوبے ہوئے بھی ہوں گے نیکوکار بھی ہوں گے بہت نیک لوگ ہوں گے ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو بہت نیک ہوں گے اور مصطفیٰ کی شفاعت ہم گنہگاروں کو تلاش کر رہی ہوگی وہ شفاعت جو ہم گنہگاروں کو تلاش کر رہی ہوگی مصطفیٰ کی شفاعت ہوگی مصطفیٰ شفاعت کرائیں گے وہاں نیک لوگ ہوں گے تو گنہگاروں کے پاس جا کر کے کہیں گے بھائی صاحب ایک گناہ ہم کو ادھار دے دیجئے ایک گناہ ہم کو قرض دے دیجئے ایک گناہ ہمیں دے دیجئے وہ گنہگار کہے گا آپ تو نیک انسان ہے آپ کے پاس اچھے اعمال ہے گناہ کیوں مانگ رہے ہیں تو اس نبی کی بارگاہ میں ہم اور آپ مل کر درود پاک پڑھیں گے کہ جس نبی کی وہ شفاعت کو اعلیٰ حضرت نے دیکھا ہے تو قلم چلاتے ہیں اور لکھتے ہیں کیا ہی ذوق افضا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ کیا ہی ذوق افضا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ وہی نبی کی شفاعت ہے جس شفاعت کے لیے مصطفیٰ کمر بستہ ہو رہے ہیں اور اعلیٰ حضرت نے جب اس کمر کو دیکھا ہے تو اعلیٰ حضرت قلم چلاتے ہیں اور لکھتے ہیں جو کی عزم شفاعت پہ کھچ کر بدھی جو کی عزم شفاعت پہ کھچ کر بدھی اس کمر کی حمایت پہ لاکھ آئیے ہم اور آپ مل کر اس نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتے ہیں کہ جس نبی کی شان کو ہم نے نہیں صرف ہم نے نہیں غیروں نے بیان کیا ہے اس انداز میں بیان کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کتاب نہیں بھائی کو ٹکرا تنوتی جپے نام محمد اگر نبی کا نام سنا ہو تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہہ دو یا رسول اللہ اس کا ٹرانسلیشن میں نے نہیں کیا
اس کا ٹرانسلیشن کسی عالم نے نہیں کیا، اس کا ٹرانسلیشن کسی مفتی نے نہیں کیا، اس کا ٹرانسلیشن کسی علامہ نے نہیں کیا، بلکہ ہندو دھرم جو بہت بڑے پنڈت جنہیں تلسی داس کہا جاتا ہے، تلسی داس اس کا ٹرانسلیشن کرتے اور لکھتے گئے لا الہ کرنے پاپم، لا الہ پڑھنے سے منشیہ کے ہردے کا پاپ ختم ہو جاتا ہے، الا اللہ تعالی، الا اللہ پڑھنے سے منشیہ امر ہو جاتا ہے، وہ تو مر جاتا ہے، اس کا نام زندہ رہ جاتا ہے۔ بے کنڈ پراپت نوتی جپے نام محمد، اگر کنڈ پراپت کرنا چاہتا ہے، سرگ پراپت کرنا چاہتا ہے، جنت میں جانا چاہتا ہے تو محمد رسول اللہ کا نام لینے والا اس نبی کی بارگاہ میں ہم اور آپ مل کر درود پاک پڑھیں گے کہ جس نبی کے بارے میں پنجابی نے گرو نانک سے پوچھا تھا اور یہ کہا تھا نانکا نفس در نہیں، نبی ہے کتنے پار، اے نانک آسمان کا کوئی در نہیں، آسمان کا کوئی راستہ نہیں، مسلمانوں کے نبی ساتویں آسمان پہ کیسے پہنچ گئے؟ تو گرو نانک نے یہ نہیں کہا تھا یہ مسلمانوں کا معاملہ ہے کسی عالم سے جا کر کے پوچھو، یہ مسلمانوں کا معاملہ ہے کسی مفتی سے جا کر کے پوچھو، نہیں۔ گرو نانک کہتے ہیں جو چرن نبی گئے کے پار، جس طریقے سے تمہاری نظر شیشے کو پار کر جاتی ہے اسی طریقے سے مسلمانوں کے نبی ساتویں آسمان، اسی طریقے سے مسلمانوں کے نبی ساتویں آسمان کو پار کر گئے۔ آئیے ہم اور آپ مل کر اسی نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ عقیدہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی وسلم علی سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا کریمنا مولانا و ملجانا محمد و بارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، قلت وقت کی تلوار میرے فکر و نظر کی مطالعاتی گردن پر آویزہ ہے، اور میرے بعد انشاءاللہ آپ کے دیار محبت میں حاضر ہوئے حضرت العلامہ حضرت علامہ مولانا مفتی عبد القادر صاحب کا بیان بھی مکمل مدلل خطاب، تو میں یہ چاہتا ہوں چند لمحہ آپ پوری طرح متوجہ ہو کر کے مجھے سنیں، ایک ایک بات کو نوٹ کر کے یہاں سے جائیں۔ میں کوئی واقعہ نہیں بتاؤں گا، کسی واقعے کو بتا کر اپنی گفتگو لمبی نہیں کروں گا، بلکہ صرف چند لمحوں میں وہ پیغام آپ کو دوں گا جو میدان کربلا سے امام حسین نے، وہ پیغام آپ کو دوں گا جو کربلا سے حسین نے دیا تھا۔ کون حسین؟ وہ حسین کہ جن کی شان یہ ہے کہ دستے بلا کو عرش کا زینہ بنا، دستے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ نے مدینہ بنا دیا، ہر ذرہ نجف کو نگینہ بنا دیا، اور اے حسین تم نے مرنے کو بھی جینا، اے حسین تم نے مرنے کو بھی جینا بنا دیا۔ امام حسین کی شان کیا ہے کہ آپ نے مرنے کو جینا بنا دیا، آپ کا مقام کیا ہے کہ آپ نے مرنے کو جینا بنا دیا، آپ کا وقار کیا ہے کہ آپ نے مرنے کو جینا بنا دیا۔ تو امام حسین کی شان، آپ کا مقام، آپ کا وقار، آپ کی عظمت یہ ہے کہ آئے مسیحت کا سنا سا ایسا، جن کے قبضے میں ہے کوثر وہ پیاسا ایسا، ارے کیوں فخر سے جھومے نہ رسول عربی، کیوں فخر سے جھومے نہ رسول عربی، تقدیر سے ملتا ہے نواسا، تقدیر سے ملتا ہے نواسا ایسا۔ حضرت محترم، سبحان اللہ، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ حضرات محترم، موت زندگی کی وہ حقیقت ہے جسے سن کر انسان کا کلیجہ پانی پانی، موت زندگی کی وہ حقیقت ہے جس سے بھاگا نہیں جا سکتا، موت وہ حقیقت ہے جس سے پیچھا چھڑایا نہیں جا سکتا۔ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں لوگ سال بھر کا سامان اکٹھا کرتے ہیں، اناج اکٹھا کرتے ہیں، غلہ اکٹھا کر کے رکھتے ہیں، چاول اکٹھا کرتے ہیں۔ کوئی کہ کسی نے کہا ہے 100 برس کا سامان ہے پل کی خبر، 100 برس کا سامان ہے پل کی خبر نہیں۔ کیا ہم معاشرے میں دیکھتے نہیں ہیں ایک انسان ہے
अपने घर में बैठा है, पैगाम हुसैन दे रहा हूँ, अपने घर में बैठा है, ये सोच रहा है कि सुबह बाजार में जाऊंगा, इसका हिसाब करना है, बाजार में जाकर उस इंसान का हिसाब करना है, एक शख्स को पैसा देना है, दूसरे शख्स से पैसा लेना है। यहाँ ये सोच ही रहा होता है कि दरवाजे पर मौत का फरिश्ता खड़ा होकर के मुस्कुराता है और कहता है इंसान ख्वाब कितने बड़े देखता है, देख अल्लाह ने मुझे तेरे दरवाजे पर भेज दिया है। क्या हमने देखा नहीं है कि लोग बाजार से आते हैं, बाहर से आते हैं, मियाँ बीवी अपने बच्चों के बीच में बैठ करके ये बातें करते हैं कि हमारा बच्चा है, इसे डॉक्टर बनाएंगे, इसे इंजीनियर बनाएंगे, इसे कलेक्टर बनाएंगे, हमारा बच्चा है, इसे आलिम दीन बनाएंगे, कुरान का हाफिज बनाएंगे, हाफिज कुरान बनाएंगे। जहाँ ये लोग ये प्लानिंग कर ही रहे होते हैं कि जो लोग अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में बात कर रहे होते हैं, सुबह का सूरज नमूदार होता है और फजर की अजान के बाद मस्जिदों से उन्हीं की मौत की ऐलान हो जाता है, उन्हीं की मौत का, उन्हीं के इंतकाल की खबर मिल जाती है। साहिब आज मूछ का झगड़ा है, आज नाक का झगड़ा है, क्या हमने इमाम हुसैन के पैगाम को फरामोश कर दिया? आज लोग अपने को माफ करने को तैयार नहीं है, अपने दोस्तों को, अजीज व अकारिब को माफ करने के लिए तैयार नहीं है। ये बोलते हैं कि इसकी हैसियत नहीं है कि हमारे सामने खड़ा हो सके, ये बोलते हैं इसकी क्या वकार है, इसका वकार ही क्या है तो ये हमारे सामने आ सके। मैं पूछना चाहता हूँ लोगों, जिस वक्त मौत ने आपको सीने से लगाया है, जो शख्स के बारे में, जिस शख्स के बारे में आप ये कहा करते थे, इसकी वकार ही क्या है तो हमारे सामने खड़ा हो सके। आज वही शख्स है जो आपको कांधा दे रहा है, आज वही शख्स है जो आपको अपने कांधे पे सवार करके कब्रिस्तान लेकर के जा रहा है। आपका जो दोस्त है जो कहते थे हम तेरा साथ न छोड़ेंगे, हम तेरा साथ न छोड़ेंगे, जिंदगी भर तेरा साथ न छोड़ेंगे, अगर तू चला जाएगा तो हमारा क्या होगा? तुम्हारे वही दोस्त है, वही अजीज है, वही भाई है, जब तुमको मौत ने सीने से लगाया है, कब्रिस्तान में जाते हैं, वही दोस्त है, कहते हैं इस सुराख को भर दो, यहाँ पे इस सुराख में मिट्टी डाल दो, यहाँ मिट्टी कब है, आखिरी तख्ता भी लगा दो, सारे सुराखों को बंद कर दो। ऐसे में जब कोई किसी का पुरसान हाल न होगा, जब आप कब्र में अंधेरी कोठरी में जाएंगे, यहाँ से जुमला देना चाहता हूँ, याद रखना मुसलमानों, हुसैन के गुलामों, याद रखना, ये गुमान कभी मत करना कि आप मुर्दे को कब्रिस्तान छोड़ कर आए हो, नहीं, बल्कि मुर्दा आपके हाथ को पकड़ करके आपको आपका असली घर दिखा करके आया है कि देख ले, जिसके लिए तूने, जिस घर के लिए तूने अपनी जिंदगी लगा दी है, वो घर तेरा असली घर नहीं है, बल्कि ये घर तेरा असली घर है। यहाँ तुझे आना है, पैगाम मुस्तफा पे, शरीयत मुस्तफा पे अमल कर ले, क्योंकि वही तेरे साथ यहाँ पर आने वाला है जो पैगाम मुस्तफा ने दिया है, जिस शरीयत को इमाम हुसैन ने करबला में बचाया है, उस शरीयत पर अमल कर ले, क्योंकि वही शरीयत है जो तुझे कब्र में, तेरे कब्र में साथ होगी, वही शरीयत है मुस्तफा पर जो कुरान नाज़िल हुआ है, उस कुरान की तिलावत कर ले, क्योंकि वही कुरान है जो रोशनी बनकर तेरी अंधेरी कब्र में आएगा। और जब तुम्हारे अजीज व अकारिब तुम्हें छोड़ करके चले जाएंगे अंधेरी कब्र में, तब कोई और नहीं आएगा, तो फरिश्ते तुम्हारी कब्र में पहुंचेंगे, तुम्हारे चेहरे से कफन को हटाएंगे, यहाँ आपके चेहरे से कफन हटेगा, मुस्तफा अपने रुख से चिलमन हटाएंगे, फरिश्ते कहेंगे मुबारक हो तेरी कब्र में नबियों का इमाम जलवागर हो गया, तेरी कब्र में तेरी कब्र में नबी जलवागर हो गया है। ऐ मुसलमानों, मैं पूछना चाहता हूँ कि जो नबी हमारे लिए रातों को सजदे करते थे, जो नबी हमारे लिए ये सदाएं बुलंद करते थे, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, क्या हम उस नबी की शान के लिए, उस नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए क्या हम मुसलमान नमाज नहीं पढ़ सकते? क्या हम उस नबी पर नाज़िल होने वाले कुरान की तिलावत नहीं कर सकते? जो शरीयत को, जिस पैगाम को, मुस्तफा की जिस शरीयत को इमाम हुसैन ने मैदाने करबला में सजदे में सर कटा करके बचाया है, क्या हम उस शरीयत पर अमल नहीं कर सकते?
क्या हम उस शरीयत पर अमल नहीं कर सकते? आज हमारा नौजवान खुराफातों में लगा है, हमारा नौजवान दुनिया के खुराफातों में जुड़ चुका है, दुनिया की खुराफातों में डूब चुका है। क्या हमारे नौजवान को ये फिक्र नहीं है कि कल मैदान महशर में क्या हाल होगा? जब कब्र में पहुंचेंगे मुस्तफा को चेहरा दिखाएंगे। और हमारा नौजवान आज बाहर निकलता है तो दाढ़ियों को साफ करा के घूम रहा है, बालों की कटिंग इस तरीके से बना रहा है कि मालूम होता है नाई से जाकर ये नहीं बोलता कि हमारे बालों को काट दो, बल्कि जाकर के ये कहता है कि साइड से घोंट दो, बीच में तंदूर खड़ा कर दो, साइड से घोंट दो, बीच में तंदूर खड़ा कर दो। याद रखो, ऐसे कटिंग कराते हो अल्लाह की लानत आपके सरों पर बरसती है, अल्लाह की लानत आपके सरों पर बरसती है। नाई की दुकान पर जाकर के अपनी दाढ़ी पर उस तरह चलाते हो। मुसलमानों याद रखो, तुम्हारी जिंदगी में कोई भी ऐसी सुन्नत नहीं है जो तुम्हारे साथ तुम्हारे कब्र में जाए। सिर्फ आपकी ये सुन्नत जो चेहरे पर सजी हुई है, दाढ़ी की शक्ल में जो चेहरे पर सजी है, सिर्फ वही सुन्नत है जो कब्र में आपके साथ जाएगी। और हमारे कौम का नौजवान है जो कहता है दाढ़ी से खूबसूरती चली जाती है, तो दाढ़ी को इस तरह चला देता है। मुसलमानों याद रखो, मेरे नबी फरमाते हैं कि जब मेरा कोई उम्मती अपनी दाढ़ी पर उस तरह चलाता है तो वो उस तरह उसकी दाढ़ी पर नहीं, मोहम्मद के कलेजे पे मोहम्मद के कलेजे पे चला करता है। मेरे नबी हैं जिन्होंने हमें पैगाम दिया है, मेरे नबी हैं जिन्होंने हमें अच्छी सीरत दी है, हमें जिंदगी गुजारने का तरीका दिया है। मेरे इमाम हुसैन है जो शरीयत मुस्तफा ने दी है, उस शरीयत को बचाने के लिए, हमें बचाने के लिए, हमारे ईमान को बचाने के लिए इमाम हुसैन ने मैदान करबला में सजदे में सर कटाकर हक्कानियत की आखिरी खीर यजीदियत की छाती पे ठोक करके ये बता दिया कि शाह भी हम हैं, बादशाह भी हम हैं, दीन भी हम हैं, दीन की पनाह भी हम हैं। और जब इन्हीं मोतियों को मोहब्बत के धागे में आला इमाम हुसैन के बेटे गरीब नवाज ने जब मोहब्बत के धागे में इन्हीं मोतियों को पिरोया है, तो गरीब नवाज कलम से कहते हुए कलम लिखता है, शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, दीन हुसैन, दीपना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा अल्लाह सुभान अल्लाह। वो हुसैन है मैदाने करबो बला में अपना खानदान लुटा करके, अपनी जान कुर्बान करके हमारे लिए हमारी नमाजों को बचा रहे हैं, हमारे लिए ना हम नमाजों को बचा करके हम तक पहुंचा रहे हैं। और हमारे कौम का नौजवान है कि सबसे ज्यादा नमाजों में सुभान अल्लाह कहने की जगह नहीं है, माज़अल्लाह बोलना चाहिए, अस्तग़फिरुल्लाह बोलना चाहिए कि हमारा नौजवान नमाजों से दूर। और आप कह रहे सुभान अल्लाह, हमारा नौजवान है नमाजों से दूर है। बूढ़े बुजुर्ग तो हमारे चले जाते हैं लेकिन नौजवान नहीं जाता है। एक जगह मैंने शायद यही पिछले इतवार में राती करार ही में कहा था, मैं गालिबन की जब आज हम मोबाइल चलाते हैं ना, मोबाइलों में देखते हैं फेसबुक वगैरह सब चलाते हैं, तो फेसबुक में किसी एक पोस्ट पर अगर इमाम हुसैन का नाम लिखा आ जाता है ना, तो उस हुसैन के नाम में जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें हजारों की तादाद में जिंदाबाद, हजारों की तादाद में जिंदाबाद लिखा जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ हमारे कौम के नौजवानों से, उन नौजवानों से पूछना चाहता हूँ कि जब इमाम हुसैन के नाम की रैली निकालते हैं, इमाम हुसैन के नाम का नारा लगाकर रैलियां निकालते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ उन नौजवानों से जो मोबाइल चलाते हैं कि जब फेसबुक में और व्हाट्सएप में इतने ज्यादा हुसैनी है, तो फिर हमारे इलाके की मस्जिदों में सफे खाली क्यों?
जब इतने ज्यादा हुसैनी है तो फिर सफे खाली क्यों है? जब इतने ज्यादा हुसैनी है, ऐ मुसलमानों, बस आखिरी लम्हे में बता करके जाना चाहता हूँ, अपने बच्चों को अच्छा पैगाम दो, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दो। जो पैगाम इमाम हुसैन ने करबो बला से दिया है, जो जिस शरीयत को इमाम हुसैन ने करबो बला में बचाया है, उस शरीयत के सांचे में अपने बच्चों को डालो, अपनी बच्चियों को डालो। ऐ मुसलमानों, याद रखना, अगर मुस्तफा की शरीयत से आपने अपने बच्चों को दूर कर दिया तो अंजाम भी गलत होगा, अंजाम भी बहुत बुरा होगा। और अंजाम अगर मुस्तफा की शरीयत से हट करके बच्चों को तालीम दिलाने का अंजाम देखना चाहते हो तो जरा देखो, अखबार उठा करके देखो, अखबारों में पढ़ो, न्यूज में देखो, एक मुस्लिम लड़की किसी गैर मुस्लिम लड़के से शादी करती है। मुस्लिम लड़की इस्लाम की शहजादी है, गैर मुस्लिम से शादी करती है। जब लड़की के बाप ने उस लड़के के खिलाफ केस किया तो लड़की मुस्लिम लड़की है, अपने बाप के खिलाफ केस करती है और कहती है मैं बालिग हूँ, जो चाहूँ कर सकती हूँ, मैं बालिग हूँ, जहाँ चाहूँ शादी कर लूँ अपनी। मैं पूछना चाहता हूँ अल्लाह जवानों, मैं पूछना चाहता हूँ अपने बुजुर्गों से कि जरा ये बताइए कि वो इस्लाम की शहजादी जन्नत में जाते जाते जहन्नम के दरवाजे पर पहुंच गई, इस अमल में जब वो जन्नत में जाते जाते जहन्नम में पहुंच गई, इस बात का जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हम और आप लोग हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को कुरान से दूर रखा, जिन्होंने अपने बच्चों को शरीयत मुस्तफा से दूर रखा। जो खवातीन मेरी आवाज को सुन रही है, वो खवातीन जो माँ का दर्जा रखती है, वो मुझे अपना बेटा समझकर, इस्लामी रिश्ते से जो मेरी बहन रखती है, वो मुझे अपना भाई समझ करके मेरे चंद जुमलों को अपनी तख्तिये दिल पर नोट कर लो कि अगर अपने बच्चों को किरदार देना है, अपने बच्चों को किरदार देना है तो मुंबई के गुंडे सलमान खान का किरदार मत देना। अगर किरदार देना है तो बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा खान का किरदार दे दो। अगर अपने बच्चियों को किरदार देना है तो सानिया मिर्जा का किरदार मत दो। अपनी बच्चियों को कलीज बनाना है तो सानिया मिर्जा की कलीज मत बनाओ। अगर कलीज बनाना है तो फातिमा ज़हरा की कलीज बना दो, हजरत ज़ैनब की कलीज बना दो। वो मुस्तफा की बेटियां हैं, उनका किरदार अपनी बच्चियों को दे दो। आपकी बच्चियों की जिंदगी सुधर जाएगी, आपके बच्चों की जिंदगी संवर जाएगी। मुस्तफा की सीरत के सांचे में अपने बच्चों को ढालो और जब ये मुस्तफा के गुलाम मुस्तफा के सांचे में ढल करके, मुस्तफा की सीरत के सांचे में ढल करके जब मैदानों में सड़कों पर निकला करेंगे तो लोग ये नहीं कहेंगे ये देखो पैंट शर्ट पहन करके न जाने कौन आ रहा है, बल्कि आपके बच्चों की शक्ल शबाहत को देख करके, आपके बच्चों के किरदार को देख करके यही लोग हैं जो ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि देख लो सीरत मुस्तफा के सांचे में ढल करके मुस्तफा का गुलाम आ रहा है, इमाम हुसैन का गुलाम आ रहा है। इमाम हुसैन का गुलाम आ रहा है। ऐ मुसलमानों, बस अपने आप को मुस्तफ़ा की सीरत से जोड़ो। जिस मुस्तफ़ा का मैंने जिक्र छेड़ा है, अभी मेरी घड़ी में मैंने 11 बजे शुरू किया था, ज़्यादा घंटे का वक्त दिया तो बस 2 या 3 मिनट मेरी घड़ी में बचा हुआ है। मैं चाहता हूँ कुछ अच्छा आपको बता करके चला जाऊँ। जिस नबी का जिक्र हमने और आपने सुना है, हाथ उठा करके बताइए उस नबी का शजरा कौन कौन सुनना चाहता? वो नबी जिस नबी ने हमें अच्छी सीरत दी, अच्छी शरीयत दी, उस नबी का शजरा अगर आप सुनना चाहते हैं तो दोनों हाथों को बुलंद करके कहिए या रसूल अल्लाह। दोनों हाथों को बुलंद करके कहिए या रसूल अल्लाह। दुनिया के पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम, जब मैं नबी का नाम लूँ ना तो इज्जत से खड़े होकर उस नाम का इस्तकबाल कर लें।
नबी के नाम का इस्तकबाल कर लेना। मुस्तफ़ा के आशिकों, मुस्तफ़ा के नाम का इस्तकबाल करना देखना चाहता हूँ किस अंदाज में आप इस्तकबाल करते हैं नबी के नाम का। कि दुनिया के पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम, आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मलाइल, मलाइल के बेटे बेआरत, बेआरत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतबश्शिर, मुतबश्शिर के बेटे नमक नेक नाम, नमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रामा, रामा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाहुर, नाहुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अम्बा, अम्बा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नजार, नजार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खुदैमा, खुदैमा के बेटे केनाना, केनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दुल मुनाफ, अब्दुल मुनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। मोहम्मद रसूलुल्लाह। और आखिरी लम्हे में ये फहरिस्त मुकम्मल कर दो कि नबी की बेटी हजरत फातिमा, फातिमा के बेटे इमाम हुसैन, इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम मोहम्मद बाकर, इमाम मोहम्मद बाकर के बेटे इमाम जाफर सादिक, इमाम जाफर सादिक के बेटे इमाम मूसा काज़िम, इमाम मूसा काज़िम के बेटे सैयदना इदरीस, सैयदना इदरीस के बेटे सैयदना इब्राहिम, सैयदना इब्राहिम के बेटे सैयद अब्दुल अजीज, सैयद अब्दुल अजीज के बेटे सैयद अब्दुल अजीज के बेटे सैयद गयासुद्दीन और सैयद गयासुद्दीन के बेटे अताए रसूल हिंदल